Am I audible? So hello यार, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम कुणाल है. मेरे फादर भी सर्विसेज में थे एंड दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू जॉइन द सर्विसेज एज वेल. मेरे जो जर्नी है वो 2021 में स्टार्ट हुआ. मैं 2021 ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड उसी साल मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया. आई थिंक यू आर कंफर्टेबल बोथ इन इंग्लिश और हिंदी, और शुड आई स्टिक टू इंग्लिश? Is there anybody जो कि हिंदी नहीं समझ आती है? Is there anybody? No, everybody. So I'll You can keep a mix. mix. So 2021 I gave my first attempt and fortunately I was able to clear the prelims, the mains, but I flunked in the interview, and as a result of which I wasn't able to get into the list by 23 marks. My second attempt was even more disastrous than my first one because I wasn't able to clear the prelim stage itself. So I failed in the CSAT by 1 mark that year. And finally, in my third attempt, I was able to cross all the 3 hurdles and get a good rank this time around. So I have had a long journey in UPSC, precisely 3 years, and so I've had some insights regarding the process. Before delving into the strategy, मैं बता दूं कि in my first attempt I scored 770 in my mains, and in my third attempt I increased my score to 840. So that was a big boost. और कुछ कुछ मैंने स्ट्रैटेजी जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ किया था उसको मैंने इम्प्रूव किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गेट दोज 70 odd extra marks. So today I will be discussing what mistakes I made in my first attempt, what the things I did to improve my marks in the third attempt, and what you all should be following to get into the list in the first attempt itself. So when is your attempt, everybody? So let's try. Some are giving mains of 24 also, 5 or 6 of them. Achha, they are giving mains Mostly this year. 25 and some student in 26. So mostly they are in 25. So I'll consider 25 to be your target here and explain the strategy in that manner only. So sir, wo right. Next. So as sir must have said and you must have also read the syllabus, the general studies consist of the essay paper and the 4 general studies paper, right? So we'll go on one by one. First is you only focus on the general studies syllabus. You never read prelims separately. If you are able to cover the general studies main syllabus, you will be able to answer most of the prelims questions with a certain bit of practice. अगर आपने इस साल का ही पेपर देखा होगा, it is mostly the mains understanding plus the factual content that you need to learn during the prelims time. So हम लोग भी आज जो डिस्कशन करेंगे वो सिलेबस वाइज या टॉपिक वाइज करेंगे. So essay is not a standalone paper. Whatever material you will be reading for your general studies paper, in some way or the other वही चीज आपका essay में भी repeat होगा. तो general studies paper 1 से शुरू करते हैं. So you must be knowing this is a paper regarding art, culture, history, society and all of the other things. So इसके generally 4 parts हैं. First is a history, second is your society, third is your geography, and last is the art and culture. So today there are many videos already there in which I have discussed the resources. So I'll not be delving deeper into that. मैं आज बोलूँगा कि आप इसमें क्या क्या certain value additions कर सकते हैं to improve your marks. ठीक है, resources वगैरह तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा. So history is perhaps one of the most difficult papers in general studies. इस बार अगर आपने general studies का pattern देखा होगा 2023 में, so people have not scored well, and one of the primary reasons for that was because of lack of specific content. तो हिस्ट्री में unless and until you are writing dates and all, kingdoms के नाम वगैरह, you will be not getting marks. जैसे इस time around ही एक दिल्ली सल्तनत पे question था and the technological advances that had taken place. Now most of the people had written generic content without delving deeper into what the actual advances were. तो आपको फिर marks नहीं मिलेंगे. So like general studies paper 2 and paper 3, you have to be very specific. इसमें what you can be to do specific is, एक तो आप prelims जो भी पढ़ते हैं, now you don't read prelims का history syllabus only for prelims. You should have a bearing in mind that this content can also be reproduced in your mains content. So आपको दोनों ways में पढ़ना पड़ेगा. अब इसमें क्या क्या include कर सकते हैं? Timelines, dynasty names, right? Then I used to draw a flowchart type of thing, explaining the
एडवांसेस ऑफ द डायनेस्टी। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू कुड राइट बुक्स, जैसे अगर ब्रिटिश इंडिया के ऊपर कभी कुछ आया तो एंगस मैडिसन करके एक फेमस हिस्टोरियन थे, ही टोल्ड हाउ ब्रिटिश वर एबल टू लूट मोर देन $40 ट्रिलियन फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। तो वो बुक का आप नाम लिख दें, इनका नाम लिख दें, सो दैट कुड शो how the poverty penetrated the Indian society after the advent of the British. You could also take the names of Shashi Tharoor and all. They have written some excellent books. तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे तो यू कुड ड्रॉ दैट. अगर मान लीजिए ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर आया था, तो यू कुड ऑलवेज ड्रॉ अ मैप एंड शोकेस कहाँ पे कौन सी म्यूटिनी हुई थी. सो दीज टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली एड वैल्यू टू योर आंसर्स एंड मेक इट अ मोर स्पेसिफिक आंसर रेदर देन अ जनरल वन. तो अब जनरल स्टडीज का मतलब नहीं, यू हैव टू राइट जनरली द पेपर, you have to be very specific, and in each section of the paper you have to show some finesse and depth in knowledge, because now the competition is quite high. और आपको 14,000 बच्चों में से अगर अपना स्कोर को 5 या 10 नंबर भी ऊपर लेके आना है, then you have to be unique in your content, and this is how you can become unique. Second is society. So society is one section of the paper where generally material is not available in the market. So what I did was, one excellent source for this is newspapers, particularly Hindu and the Express. So these two newspapers are very good, and last time around almost 2 questions were directly repeated from these newspapers. Second is your PM Modi ki Man Ki Baat. So in this edition, or in each and every month, the Honorable Prime Minister discusses one topic regarding to a particular social issue or a society के कुछ diversity वगैरह हो गई. So this is another thing that you could be referring to. Third is your India yearbook. उनके initial chapters. So that also discusses society हमारी कैसी है, how diversity has grown. And last resource for this that I used was Yojana. So Yojana also frequently discusses some of the societal issues that are present. Geography में एक तो NCERT is very good, ठीक है. Another book is GC Leong, which I highly recommend you should be reading GC Leong, because जो landforms वगैरह के चैप्टर, जैसे इस टाइम अराउंड fjords के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, NCERT में only one word was mentioned. अगर आपको, लेकिन you cannot write a 150 word answer based upon only one word. You need some background knowledge. तो उसके लिए you can look for GC Leong. एक जो मुझे काफी काम आई, that was documentaries, particularly in national geography. So they help you to visualize geography, because geography में you cannot just base your knowledge on rote learning like you can do in history. You need a little bit depth of understanding. अगर आपने इस बार भी देखा होगा पेपर कि ट्रोपोस जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, उसमें भी ज्योग्राफी में देवर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि कहाँ ट्रोपोस्फियर ज़्यादा लेंथ का होगा, कहाँ कम होगा, कोरियोलिस फोर्स कैसे यूज होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो फिर ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ इफ यू जस्ट skim through the NCERTs, you will not be able to develop that depth of knowledge, and same goes for your mains also. तो आपको एक holistic understanding की जरूरत है when it comes to geography, and that's where the documentaries provide useful. इसमें एक और इंडिया ईयरबुक की जो फर्स्ट पार्ट है, उसने इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रखा है. So this is also good. And while writing answers, there are 2-3 things you should be focusing upon. First is micro diagrams. अगर कोई भी लैंडफॉर्म पूछा गया है या डिस्कस किया गया है, ऑलवेज ड्रॉ माइक्रो डायग्राम, दैट वुड एड वैल्यू टू योर आंसर्स. सेकंड इज योर वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप. So these also provide useful value addition, right? Finally, we come to art and culture. One of the only resources that I used was Tamil Nadu book, history book. Along with some chapters of Nitin Singhania. Right? And one more thing that you can be referring to is एक YouTube पे डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी आती है, भारत एक खोज. तो उसमें सारे जो टेम्पल्स हैं, चाहे वो यूपी वगैरह के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, सो दीज टेम्पल्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड बाय दिस डॉक्यूमेंट्री, एंड यू कैन बी यूजिंग दैट. इस फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्किटेक्चर का है. देन उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आप डांस फॉर्म्स वगैरह
प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग चैप्टर्स हैं, मेंस के लिए पढ़े अलग चैप्टर्स हैं। तो प्रीलिम्स के लिए डांस फॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो इट्स अ सिंपल शॉर्ट आंसर। देन देयर इज रिलीजन्स के ऊपर है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज कभी कभी डांसेस के बाद आपका जो लिटरेरी वर्क्स हैं अलग अलग, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा। 11th क्लास का भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक ही पढ़िएगा, या तो नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, बोथ का ज़्यादा वो नहीं है। एक चैप्टर प्रीलिम्स तो अभी है नहीं, अगर नेक्स्ट ईयर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुक आता है लूसेंट करके, ये जीके की बुक है बस, इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट रहता है, तो रटने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हिस्ट्री के फैक्ट्स के लिए। बाकी आर्ट एंड कल्चर में मैं अभी बोल रहा हूँ, आप जब तक अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे यू कैन नॉट रीड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सो दे आर वेरी इंटरलिंक्ड। तो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बुक में आपका हिस्टोरिकल पार्ट दिया हुआ है सारे एम्पायर्स का, उसका एक स्टेप आगे है आपका नितिन सिंघानिया की बुक। अगर आपको नितिन सिंघानिया समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू द एनसीईआरटीज एज वेल, ठीक है। बट कंसोलिडेट योर रिसोर्सेज, ये नहीं कि तीनों चीजें एक साथ पढ़ ली, बिकॉज आप ना उसको पढ़ पाएंगे टाइम पे एंड ना आप उसको समझ पाएंगे। नहीं तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का उसमें पता नहीं कॉन्सेप्ट है, मेरे को तो एक ही एनसीईआरटी पता है तमिलनाडु की। ओल्ड और न्यू तो आपका उसके लिए है, सॉरी तमिलनाडु का कि एनसीईआरटी वाला। नहीं, तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी नहीं हो सकता कुछ, एनसीईआरटी सेपरेट ना। सी एनसीईआरटी इज अ सेपरेट बोर्ड, तमिलनाडु इज अ सेपरेट बोर्ड, तो दोनों नहीं हो सकते साथ में। एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी में ओल्ड एंड न्यू सुना है, पहले आर एस शर्मा की आती थी, अब जो है थीम्स की एनसीईआरटी आती है। तो मैं तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी थी आर एस शर्मा की। तमिलनाडु बोर्ड में मैंने सिर्फ जो मुझे मार्केट में एक ही मिली, मैंने ज्यादा उसमें रिसर्च किया नहीं। नहीं नया पता नहीं यार, देख लेना। थोड़ा ही डिफरेंस होगा आई थिंक। देखो मैं तो एनसीईआरटी में आप लोग ओल्ड वाली पढ़ लो। If you have the one, you can shoot with him after this. हाँ। I will tell you the concept. कौन सी वाली है, आप PDF shoot कर देना ही उनको। देख लें। पता नहीं यार, मैंने तो डायग्राम वो पतली वाली छोटी वाली बोल रहे हो कि एक बड़ी वाली है? हाँ इतना सही है, 2 पार्ट्स में है ना। अरे ठीक है, इट इज इमटेरियल यार, एक ही बुक है, इसमें से सिर्फ 2-3 मार्क आएंगे, एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और एंशियंट में आता भी तो किसी से नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पार्ट। सो जनरल स्टडीज पेपर 2, अब ये मेरा फेवरेट पेपर रहा है हमेशा से। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 120 इन दिस वन, और दिस टाइम अराउंड आई एम क्लोज टू बीइंग द ऑल इंडिया टॉपर। मेरे 134 मार्क्स आए हैं। ये काफी मैं अथॉरिटेटिवली बोल सकता हूँ इस वाले पेपर में। तो इसके भी 4 पार्ट्स हैं, एक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट इज योर गवर्नेंस, थर्ड पार्ट इज योर सोशल इशूज, एंड द लास्ट पार्ट इज IR। तो इसमें मेरे को एक एडवांटेज तो हमेशा से ये रहा है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाज माय ऑप्शनल, एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे ख्याल से जो मेरे 14-15 नंबर बढ़े इस अटेम्प्ट में, द मेजर रीजन वाज दैट आई डिड नॉट क्रिएट एनी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बिटवीन माय नॉलेज ऑफ PSIR एंड GS। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, आई डिड नॉट यूज माय PSIR नॉलेज इन माय जनरल स्टडीज पेपर, तो आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ। दिस टाइम अराउंड अगर मुझे लगा कंटेंट सूटेबल है तो आई डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पेपर्स। तो मैंने स्कॉलर्स वगैरह भी काफी यूज किए इस बार अपने जनरल स्टडीज पेपर में। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो? पहले तो एक आम आप कर सकते हो स्कॉलर्स यूज करना, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन, केसी वियर, फिर आपका AV डाइसी हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, तो इन सब स्कॉलर्स के नाम आप फ्रीली यूज कर सकते हो। JS मिल हो गया, अगर लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन आए, बाद में करते हैं ये। JS मिल के क्वेश्चंस हो गए, फिर जॉन लॉक हो गया, तो ये हम आपके PSIR के उसमें पढ़ते हैं।
लेकिन आप इसको फ्रीली अप्लाई कर सकते हो अपने जनरल स्टडीज पेपर में भी। तो ये एक स्कॉलर्स का पार्ट पहला हो गया। सेकेंड पार्ट जो आप इसमें वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हो, पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। Now what are these? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी निकाल के रखी है, जैसे कि नेशनल सॉफ्टवेयर पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन एंड चाइल्ड, नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ। तो ये सारी चीजों को भी आप अपने जनरल स्टडीज के पेपर 1 में यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर कमिटीज एंड जजमेंट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका वैल्यू एडिशन में काम करेगा, पर्टिकुलरली जनरल स्टडीज पेपर 2 में। सेकंड आपका गवर्नेंस आता है। इसमें भी 2-3 चीजें हैं जिसको आप काफी चीज कर सकते हो। पहला तो एक बेटर इंडिया फाउंडेशन करके वेबसाइट है, तो इसमें जितने भी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ गवर्नेंस हैज इंप्रूव्ड, हाउ सर्विस डिलीवरी हैज इंप्रूव्ड इन इंडिया, यू कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। सेकंड जो गवर्नेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योजना एंड अगेन मन की बात। दे आर एक्सीलेंट रिसोर्सेस फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस इन इंडिया। थर्ड जो एक मैंने यूनिक चीज में इस बार की थी, दैट इज इंटरनेशनल केस स्टडीज। लाइक हर साल न्यूज में इंश्योरेंस स्कीम चलती है, ठीक है, हाउ गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो ब्राजील में एक बहुत अच्छा मॉडल था, रेंडा सिकाडा मॉडल करके, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा एंड आई ट्राई टू एम्यूलेट इट इन माय आंसर्स एज वेल। सेम आपका जीएसटी में भी यूज होगा, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है, हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी में जनरल स्टडीज पेपर 3 में। तो जर्मनी में एक बहुत अच्छा मॉडल है मिडिल स्टैंड मॉडल करके, तो उन्होंने मिडिल स्टैंड मॉडल को कैसे यूज किया, वो आपका इंटरनेशनल केस स्टडी बन गया। गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो वन स्टॉप पोर्टल हो गया, जैसे आपके एस्टोनिया करके एक देश है यूरोप में, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज विच इंप्लीमेंटेड ब्लॉकचेन इलेक्शंस। तो हम कैसे ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सर्विस डिलीवरी में। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरनेशनल केस स्टडीज विच यू कुड ऑलवेज साइट टू इंप्रूव योर आंसर्स कंपेयर टू अदर्स। सॉरी फॉर व्हाट दीज थिंग्स। तो एक तो अब जो आपकी इंटरनेशनल केस स्टडीज हैं, व्हाट आई डिड वाज आई डिड नॉट फाइंड एनी वन बुक, so I used to Google कि blockchain innovation governance service delivery, just write keywords on your Google and it will come up with certain searches and then you have to work about it. So अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि there is something। नीति आयोग की रिपोर्ट भी अच्छी है वैसे इस मामले में, नीति एट 75 रिपोर्ट। तो पहले सबको याद होगा सेकंड ARC आती थी, अभी भी आती है, लेकिन उसके जो रिकमेंडेशंस है दे हैव बिकम क्वाइट रिडंडेंट बिकॉज काफी टाइम हो गया। तो नीति एट 75 इज द न्यूअर रिपोर्ट, उसमें ये विजन डॉक्यूमेंट है फॉर इंडिया, so you could always refer to that, right? Social issues again, it is quite similar to society का part, लेकिन इसमें अलग अलग चीजों पे आता है, जैसे poverty, health, education। तो इन सेक्टर्स पे जनरली बिलोंग करता है। तो आप 2-2 पेज के राइटअप्स तैयार कर लो सबके, ठीक है, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन द फाइनल डेज एज वेल, जब आप अपना मेंस देने जा रहे हो। इसका आप तैयारी कैसे करोगे? पहले तो डेफिनेशन क्या है, स्टेटस इन इंडिया, देन यू कुड राइट स्वॉट एनालिसिस, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, इन सब चीज़ों को टैकल करने में। देन इंटरनेशनल केस स्टडीज टू एलिविएट द प्रॉब्लम, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। जैसे इसका एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट शक्ति, ओडिशा में ही है शायद, सॉरी हाँ मिशन शक्ति। तो वो एक अच्छा केस स्टडी हो जाता है आपके लिए। यूपी में जैसे काफ़ी सारे इन्होंने प्रोग्राम सिखाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कैसे इसने वो किया। एक शायद झारखंड में दियोगार मार्ट करके भी एक मॉडल है, जिसमें कैसे ट्राइबल्स को उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया। सो दीज आर सम गुड इनिशिएटिव विच यू कुड बी राइटिंग इन एलिवेटिंग दिस प्रॉब्लम्स, राइट। इसमें एक दो चीजें और आप कर सकते हैं, एक तो कोई कमिटी, अब अगर आप कभी भी पेपर 2 लिख रहे हैं, हमेशा ट्राई करिए कमिटीज या केस जजमेंट्स यूज करने का, तो दैट वुड ऑलवेज ऐड वैल्यू टू योर आंसर। जैसे अगर कभी वुमेन एम्पावरमेंट का आता था क्वेश्चन, तो एक बबीता पुनिया केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया आर्म फोर्सेज में वुमेन का, तो दैट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल। ऐसे और भी बहुत सारे केस स्टडीज है एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, पॉवर्टी के लिए, सो दीज कुड हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। लास्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस।
सो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक तो कोई भी आप इसमें सबसे पहली चीज है करंट अफेयर कंपाइलेशंस ऑफ एनी कोचिंग वुड डू फॉर 1 year, फॉर 1.5 year एक्चुअली, ठीक है. दिस वुड हेल्प यू टू सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. और इंटरनेशनल रिलेशन में जितना आप करंट ओरिएंटेड रहोगे, जितना डायनेमिक रहोगे, इट वुड हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है. सेकंड, इसमें कुछ अच्छे स्कॉलर्स हैं, जैसे सी राजा मोहन हो गए, सुहासनी हैदर मैम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है वर्ल्ड व्यू करके. फिर आपका हर्षवी पंत का ORF है, ORF में आर्टिकल्स लिखते हैं. राय साइना डायलॉग्स हो गए आपके, शांगिला डायलॉग्स हो गए. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फोरम्स जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आके अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, एंड दैट कुड हेल्प यू टू गेट राइट अ बेटर आंसर. सेकेंडली, अगर सिर्फ वैल्यूडेशन की बात की जाए तो एक तो मैप्स बना दिया करिए इसमें हमेशा, राइट. सेकेंड चीज आप इसमें कर सकते हैं कि स्टेट्समैन का नाम यूज कर सकते हैं, जैसे एच जयशंकर ने ये कहा. अब इस बार तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया कि एच जयशंकर ने कौन कौन सी बुक लिखी. वांगी हो गए, डेविड कैमरून हो गए आपके, फिर सर्गे लैवरॉव हो गए, फिर आपका एंटनी ब्लिंकन हो गया वहाँ का, US का NSA है, अजीत डोवल सर हो गए इंडिया के. सो दीज कुड हेल्प यू टू गेट एक थोड़ा फॉर्मल राइटिंग लिखने का. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट यू कुड बी राइटिंग, और इससे आपका IR का पार्ट हो जाएगा. जनरल स्टडीज पेपर 2 में मैंने जो मुझे लगता है मेरा स्कोर इस बार इतना अच्छा इस वजह से आया क्योंकि आई इंश्योर्ड कि मैं हर एक पॉइंट पे डेटा या फिर कुछ अच्छा वैल्यूएशन पॉइंट लिख के आऊँ. तो आप अपना एग्जाम पॉइंट यहाँ लिखिए और मेक श्योर टू सब्सटैंशिएट इट विद एग्जांपल्स, चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 3 हो. जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स देंगे उतना क्लैरिटी से आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे बिफोर द एग्जामिनर, एंड दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले ही बहुत ही रूडिमेंट्री पॉइंट लिखिए, बहुत ही बेसिक पॉइंट लिखिए, बट इफ यू हैव अ गुड एग्जांपल टू बैक इट अप, then that point also becomes an extra special point, right? So this is how you could score good marks. इसमें भी what I did was I prepared at home only some of the introductions and conclusions. So that actually helped me to save time in the actual examination also. अब conclusions में generally लोग SDG वगैरह से खत्म करते हैं, but that has also become quite mundane कि सभी लोग SDGs यूज कर रहे हैं. सो आई यूज टू यूज गवर्नमेंट की टैगलाइंस. अगर कॉपरेटिव्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो साहकार से समृद्धि, दैट इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज यूज टू एंड माय आंसर विद. तो आप ऐसे गवर्नमेंट की टैगलाइंस यूज कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास. दीज आर ऑल अप्रिशिएबल पॉइंट्स. अगर पॉवर्टी एलिवेशन की बात आए तो सर्वोदय से अंत्योदय हो गया आपका. तो दीज आर समथिंग विच एवरीबडी रीड्स ऑन अ डेली बेसिस, बट ओनली फ्यू पीपल राइट इट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. तो उस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है. सो द थर्ड थिंग is your general studies paper 3. Now this is perhaps the most difficult paper because अब इसमें कुछ भी लिखा है मार्क्स आपके बहुत ज्यादा आने मुश्किल ही होते हैं. Now इसमें भी 4 पार्ट्स हैं: इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. राइट. अब वन थिंग मैं आउट पहले ही बोल देता हूं, अगर आप इसमें जैसे मैंने 1 and 2 में बोला आप जनरल आंसर्स लिखेंगे तो स्टिल देयर आर चांसेस कि आप सेव हो जाएं. जनरल स्टडीज स्ट्रीम पेपर में आप अगर जनरल आंसर्स लिखते हैं तो यू नॉट बी स्कोरिंग मोर देन 80 नंबर्स, मार्क माय वर्ड्स. इस बार आप बहुत लोग ऐसे हैं which are out of the list because general studies paper 3 में they scored exceptionally low. exceptionally high marks का concept ही नहीं है GS 3 में. तो अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो you will be scoring 105 106 marks जो टॉपर के आते हैं. और एवरेज नंबर इसमें जनरली आपका वेरी करता है फ्रॉम 75 to 80. दिस इज द एवरेज जो लिस्ट में आ रहे हैं उनके नंबर है, एंड अबव दैट वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा फिर. तो इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज दैट पीपल आर नॉट writing precise points, data laden points. Economy ऐसा पेपर है where if you don't write precise points which are backed by data, you will not be able to convince the examiner that you are right. ठीक है. अगर आपने इन्फ्लेशन सिर्फ हवा में बोल दिया विदाउट सेइंग कितना परसेंटेज है, कौन सी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं आप, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. तो इकोनॉमी पे 2-3 सोर्सेज काफी अच्छे हैं. पहला तो आपका जो मैं हर साल ही पढ़ता था रिगार्डलेस, एक तो बजट है प्लस इकोनॉमिक सर्वे. Right, budget is for keywords and new initiatives plus data regarding the economical state, regarding economy. अब इसमें डेटा आप सारा पढ़ लीजिए, फिजिकल डेफिसिट क्या है आपका,
इन्फ्लेशन का क्या लेवल्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या लेवल है, आपका डेप्ट कितना है, इंटरनल डेप्ट कितना है, एक्सटर्नल डेप्ट क्या है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कुड बी गेटिंग फ्रॉम द बजट. प्लस किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया गया है. प्लस ये काफी अच्छे टैगलाइन भी देते हैं, जैसे सप्तऋषि प्रिंसिपल हो गया. So this becomes a very important tagline which you could be using. उसमें 7 spokes हैं and each spoke can be a possible conclusion for any of your answers. So that is important. Economic survey क्या देता है? एक तो possible questions जो आने वाले हैं. हर साल जनरली यूपीएससी में ये होता है कि एक चैप्टर का जो नाम है इकोनॉमिक सर्वे का, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन इटसेल्फ. लाइक इन 2021 a lot of talk was going about the V-shaped economic recovery. 2023 में lot of talk was going about the unemployment status in India and these were discussed as it is in your economic survey. So आपने एक बार chapters के नाम पढ़ लिए तो you can with a decent possibility predict what type of questions would be asked in mains examination. Plus data तो ये देता ही है हर चीज़ के बारे में, from railways, infrastructure, हर energy production, energy consumption, हर चीज़ का data ये देता है. So economic survey is not only important for economy but all the rest of the 3 things can also be extrapolated if you have correctly and sincerely read the economic survey. Second is science and tech. Now there are only 2 types of questions. अच्छा इसमें एक चीज़ value addition के लिए जो हर बार काम आई है, that is drawing graphs. If there is any question with regards to economy, make sure that you draw graphs. It is an excellent way of visual representation. You can show a lot of data with very few points and a very small space. Plus ये copy को थोड़ा आपका अलग भी बना देगा. तो I extensively used to draw graphs when a question regarding economy was there. Science and tech में generally 2 तरह के questions आते हैं. The first question is regarding a concept and the second question is regarding application. Now the application is also 2 types. एक तो biotechnology में क्या application है and second is in your computer science field. Concept is also 2 types. एक तो contemporary या फिर novel. So these are the only 4 questions जो आपके पूछे जाते हैं अगर आप कोई भी देख लें, चाहे prelims हो चाहे mains हो. कोई concept का question होगा या कोई application का question होगा. Now application भी हर साल change होता रहता है. जैसे 2022 was biotech heavy, right? 2023 आपका computer science heavy है. 2021 was also biotech, दोनों का mixture था. तो आप इसे कर सकते हैं कि अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 15 मार्कर में तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड. अब इसमें आपका बहुत चीजें हैं, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्यू डॉट्स, क्यूबिट्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट वगैरह हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई आपकी पूरी. ठीक है. अब कॉन्सेप्ट में भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, पिछली बार पूछा था क्रिस्पर कैस9 क्या होता है. सो जनरली इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो जो भी करंट, और इसमें भी एक नॉवल टेक्नोलॉजी होगी जो एकदम रिसेंटली बना है और एक कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी होगी जो पहले से बनी हुई है. जैसे इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूछा था, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ दीज 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो आप इसको इसी तरह प्रिपेयर करिए व्हेनेवर यू आर रीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस विल हेल्प यू टू रैशनलाइज योर कंटेंट एंड ऑल फोकस ऑन द प्रायोरिटी एलिमेंट्स. ठीक है, दैट कुड बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन. सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यार एक कोई पर्टिकुलर सोर्स इसका नहीं है. एक तो वही कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं आप. ठीक है, ईयरली करंट अफेयर कंपाइलेशन, दैट इज गुड. सेकंड, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाट आई रेफर्ड वाज, perhaps this was the only thing. Apart from that I read documentaries and all. न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है इसमें. हिंदू का एवरी संडे साइंस एक्सप्रेस आता है. ठीक है, दैट इज अ 1 पेज डॉक्यूमेंट. उसमें वो नॉवल चीज़ें जो हुई हैं वो उसके बारे में डिस्कस जरूर करते हैं. ठीक है. एंड और मुझे नहीं लगता कोई एज सच बुक है पर्टिकुलर इसकी. जनरल आपको अवेयरनेस इसमें रखनी पड़ेगी एंड न्यूज़पेपर्स इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कीपिंग दैट अवेयरनेस अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर कंपाइलेशंस. हाँ, जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं. तो एनसीईआरटी इसमें 2 हैं. एक तो बायोटेक वाली है, जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स या लास्ट 10 चैप्टर्स उसमें बायोटेक वगैरह डिस्कस काफी अच्छे से किया गया है. वैसे ही आपकी कंप्यूटर साइंस की भी एनसीईआरटी है क्लास 12 की, उसमें उन्होंने ब्लॉकचेन और ये सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं. सो इफ यू वांट टू हैव अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट दीज टॉपिक्स एक्चुअली मीन, यू कुड ऑलवेज रेफर टू दैट. राइट यार, स्पेस के लिए करंट अफेयर कंपाइलेशन जो आते हैं उनका पूरा पेज होता है डायरेक्ट, मतलब अराउंड 20-30 पेजेस दे ओनली डिस्कस अबाउट स्पेस. सो दिस इज समथिंग दैट एवरी कोचिंग कवर्स. उससे आपका मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीजें हो जाएंगी, बट काफी चीजें वो वर्ड्स वगैरह यूज करेंगे which if you don't have a science background you might not understand. वहाँ पे
सी अगेन मैं कह रहा हूँ साइंस एंड टेक इज वेरी वेरी कॉन्सेप्ट हैवी. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग एंड यू डायरेक्टली स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट, परहैप्स आपका टाइम काउंटर नहीं हो पाएगा. तो मैंने तो अपना इसमें रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा. सी देर इज अ वे ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन एंड देर इज अ वे टू गेन नॉलेज. मैंने कभी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने हमेशा फोकस किया मेरे एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है. सो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही था कि आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, अब जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म या PSIR वगैरह में, दैट वाज सम आइडियोलॉजी विच आई एब्सोल्युटली लाइक्ड. अब जब मैंने उसका एक्चुअल वो देखा, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट जो बुक्स में लिखा गया है, या प्लेटो का जो मैम पढ़ाती हैं और आपने बुक्स पढ़ी होंगी अगर, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज दे आर डेल्विंग इन टू डीपर टॉपिक्स विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर UPSC पेपर. तो एक लाइन आपको खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर नॉट बी एबल टू कवर द सिलेबस. there are more than 100 topics that you need to cover, ठीक है, and each and every topic is not of the same वो importance, because some of the topics are regularly asked by UPSC while others are not. तो आप अपना ओरिएंटेशन ही और प्रायोरिटी इसमें करिए कि यू हैव टू फर्स्ट फिनिश दिस. आफ्टर क्लियरिंग UPSC आप जरूर PhD वगैरह जिसमें करना चाहें करें, लेकिन आई डोंट थिंक UPSC का टाइम इज द बेस्ट मतलब टाइम फॉर डूइंग योर थिंग्स. नेक्स्ट इज योर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट तो यार मतलब आई लाइक दिस टॉपिक. मुझे इन्वायरमेंट की चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है, तो आई हैड काफ़ी मैंने इसमें डीप में स्टडी किया था. तो यार इसमें 2-3 सोर्सेज काफ़ी मुझे अच्छे लगे. अगेन इसमें मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता था, जैसे और प्लैनेट हो गया, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा शायद सभी ने यहाँ पे. देखा है? नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी अच्छा है. मैन वर्सेस वाइल्ड भी, उसमें भी आपको सारा फ्लोरा एंड फौना पता चल जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है. एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट UPSC इज टेस्टिंग नाउ. अगर आपने इस साल का ही पेपर देखा होगा तो उसमें भी उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड पूछा. जैसे 2019, 18, 20 में वो क्या पूछते थे, कौन सा नेशनल पार्क किधर है या कौन से रामसर साइट्स किधर है. नाउ दिस इज नॉट व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू नो वेदर यू नो कि एनिमल की कौन से ट्रेट्स हैं या क्या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ठीक है. एंड सो यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह काम आती हैं. अगर आपने कभी भी कोई भी नेशनल ज्योग्राफी की किसी लाइन पर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, तो आप वो जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, वो 1 मिनट में भी नहीं लगता आंसर करने में वो. एंड इफ यू हैव नॉट सीन इट, ये किसी बुक में नहीं कवर होगा या किसी भी करंट अफेयर कंपाइलेशन में कि हाउ डज लायन मार्क हिज टेरिटरी. आई डोंट थिंक एनी बुक कवर्स दैट. या पहले उन्होंने पूछा था एलिफेंट के ऊपर कि एलिफेंट का क्या जेस्टेशन पीरियड है. इट्स ओनली व्हेन यू सी एनिमल्स एक्चुअली इन फंक्शनिंग तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं. सो यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एंड दैट इज वेयर दीज टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली वर्क अ लॉट. एक बड़ा अच्छा है. अब हैविंग सेड दैट कि आपको वो पूछते नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप पढ़े नहीं. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड द नेशनल पार्क्स एंड ऑल, ठीक है. तो उसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है एनविस करके. दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट. यू कुड ऑलवेज रेफर टू दैट. इसके अलावा इन्वायरमेंट में आई थिंक PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक चीज़ हम सब करते हैं, दैट इज IUCN की वेबसाइट वगैरह. IUCN हो गया आपका, WWF हो गया, फिर आपका डाउन टू अर्थ हो गया. Now these are important publications. You could directly refer to them, and इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है. ऑलवेज ट्राई टू इवेल्युएट कि कोई भी सिलेबस पॉइंट आप कर रहे हो तो उसमें ROI क्या है. आपने अगर 10 घंटे लगाए तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है और UPSC कितना आउटपुट डिमांड करता है. ओनली देन विल यू बी एबल टू क्यूरेट योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एंड मार्क्स फेच का ज़्यादा चांसेस मिलेगा. लास्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो यार काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी हो गई 2016 की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया 2005 का. दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू कुड ऑलवेज रेफर, ठीक है. अदर इसमें भी कुछ साइकिल्स वगैरह बनते हैं, बिल्ड बैक बेटर वाले, वो सब साइकिल्स आप रख लीजिए. सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है वो देख लीजिए. ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या होता है, CDRI क्या करता है इंडिया का, और कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर है इंडिया में, कि स्टेट कमिटीज़ कैसी हैं, नेशनल कमिटीज़ कैसी हैं, कौन हेड करता है उनको. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें विच यू शुड बी नोइंग. प्लस एक राइटअप बना लीजिए टॉप साइक्लोन्स पे. सो ऑलवेज रीड डिजास्टर मैनेजमेंट इन कॉन्सोनेंस विथ योर ज्योग्राफी का पार्ट, राइट. तो जैसे साइक्लोन्स हो गए, वाइल्ड फायर हो गया, सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक,
so on and so forth. ठीक है, इन सब के 2-2 पेजेस का राइटअप बना लीजिए. You will already be studying these phenomena in geography. इसका जो इम्पैक्ट का पार्ट है और जो इसका स्टेटस है इंडिया में, यू शुड कवर इट बाय योरसेल्फ फॉर योर डिजास्टर मैनेजमेंट थिंग, राइट. बाकी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें जनरली 2-3 चीजें पूछते हैं. एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, सेकंड पूछते हैं आपके CAPFs कैसे काम करते हैं, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन तीनों का फंक्शनिंग क्या है आपका, और न्यू चैलेंजेस. अब बॉर्डर मैनेजमेंट में आपका सब कुछ आ जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी का इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं. ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आर्मी CAPF है, दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक इंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. तो 2 आपके बेसिक ब्रॉडर पॉइंट्स हैं. एंड नॉवल चैलेंजेस की देश में आप नए नए क्या खतरे बन रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर के आपके चांसेस हो गए, साइबर वॉरफेयर कहाँ कहाँ हो रहा है. तो ये सब चीज़ों के आप एग्जाम्पल्स आप एक जगह कोलेट करके रख सकते हैं. इसमें आपको अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे कभी क्वेश्चन आएगा तो जरूर मैप बनाइएगा, इट वुड हेल्प यू फेच बेटर मार्क्स. इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो मैप बना सकते हैं आप, या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं. साइंस एंड टेक में ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन वॉट एवर कॉन्सेप्ट इज बिंग आस्क्ड, ठीक है. एंड इकोनॉमी में आपके ग्राफ्स हो गए. सो दिस इज सम सेक्टोरल वैल्यू एडिशन दैट यू कुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 4. So this is perhaps the, in terms of syllabus length, this is the shortest. In terms of writing, it is the lengthiest. In terms of mark setting, it is average. ये fluctuate करता है between your optional and your general studies बाकी के paper. So this time around 143 was the highest. I scored 118 in general studies paper 4. There are generally 2 parts. 2 parts के एक ही part है, उसका application second part हो जाता है. So that is section A and section B. Section B is your case studies. Section A is your theory part. Theory part में generally जो सिविल सर्वेंट्स को क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है. अब बस अभी क्वालिटीज पढ़िए मत, ट्राई टू इंकलकेट देम इन योर लाइफ एज वेल. इट वुड हेल्प यू नॉट इन ओनली क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन बट बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन फॉर फ्यूचर एज वेल, राइट. अब इसमें इन्होंने कीवर्ड दे रखे हैं जैसे ऑब्जेक्टिविटी, compassion, impartiality, emotional intelligence and so on and so forth. ठीक है, तो इन सब का आप एक पेज का राइटअप बना लीजिए. कैसे बनाएंगे, एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है इनकी, एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, एक डायग्राम प्रिपेयर करना है इनका, इंट्रो और कंक्लूजन प्रिपेयर करना है पहले से, एंड सम यूनिक वैल्यू एडिशन. मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैंने कैसे किया था एक पर्टिकुलर कीवर्ड का. फॉर एग्जांपल प्रोबिटी, राइट, दिस इज द कीवर्ड इन द दैट इज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस. तो इसका आप एक डेफिनेशन रख लीजिए कि व्हाट इज प्रोबिटी, ठीक है. एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे मैंने M विश्वेश्वरैया का बात किया था प्रोबिटी में, या फिर मैं इसरो की बात करता हूँ जब प्रोबिटी आती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. डायग्राम, तो इसका डायग्राम मैंने ये बना के गया था मैं पहले से घर पे. Honesty, rectitude, uprightness, ठीक है. फिर आपका इसका डायग्राम हो गया. इंट्रो और कंक्लूजन बना के गया था. कंक्लूजन जैसे से क्या था, विद सत्यमेव जयते एज अ नेशनल मोटो प्रोबेबिलिटी बिकम्स अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव फॉर इंडिया. फिर आपका यूनिक एग्जांपल्स हो गए, वैल्यू एडिशन, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कोई मिलता है तो राइट इट डाउन. तो इसी बेसिस पे आप सारे कीवर्ड्स को प्रिपेयर कर लीजिए. अंत में आपके पास एक पूरा चार्ट वो हो जाएगा, एक बुकलेट टाइप की, जिसमें अपने सारे कीवर्ड्स को डिस्कस कर रखा है, एंड दैट वुड बी योर प्राइमरी सोर्स व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. केस स्टडी जो है सेक्शन बी, 6 केस स्टडीज पूछी जाती हैं, 6 केस स्टडीज. ईच केस स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट, कि करप्शन अगर होगा तो आप कैसे डील करेंगे, राइट्स वगैरह हो गया. तो बेसिकली आपको कभी डीएम बना देंगे, कभी एसपी बना देंगे, कभी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बना देंगे, कभी रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर बना देंगे, कभी आपको आपके पर्सनल कैपेसिटी पे पूछेंगे आप क्या करेंगे, कभी कोई न्यू एज प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसको डिस्कस कर लेंगे. जैसे इस बार आया था उसके ऊपर क्वेश्चन, दैट इज योर साइबर बुलिंग का.
ठीक है, दैट इज अ न्यू एज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आप कैसे करोगे? तो आपको अपने आप को इन सारे रोल्स में डाल के देखना है कि आप कैसे एक्ट करोगे, एंड दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग। तो ये जो पार्ट है सेक्शन ए का, दैट उसका एप्लीकेशन ही होगा इस पे। तो ट्राई एंड यूज दीज कीवर्ड्स सेक्शन बी में भी। जितने कीवर्ड यूज करेंगे उतने ज्यादा नंबर लाने के आपके चांसेस हैं। एथिक्स में मेरे ख्याल से पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल विद इन द टाइम पीरियड दैट इज बिंग मेंशन्ड, ठीक है, बिकॉज अगर आपने टाइम पीरियड एक्सीड करने लगे देन इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, so this is your case studies. Now the last thing that comes is your essay. So essay again is of three type. तीन चीजें ऐसे में जनरली टेस्ट होती हैं। एक है फ्लो, कितना ऑर्गेनिक है आपका ऐसे, राइट। दूसरा आपका इंटरप्रिटेशन, वेदर यू हैव आपका इंटरप्रिटेशन सही था टॉपिक का कि नहीं था। एंड तीसरा इज योर वैल्यू एडिशन, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंटेंट, राइट। फ्लो आप कैसे करेंगे इसमें? तो जनरली दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं कि जनरल स्टडीज में इन द सेंस कि पॉवर्टी के ऊपर पूछ लिया, कभी वुमेन एजुकेशन के ऊपर पूछ लिया, सो एंड सो फोर्थ। तो उसमें दो इसमें अप्रोचेस यूज कर सकते हो। अगर फिलोसफिकल ऐसे आता है तो ऑलवेज यूज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा टॉपिक के ऊपर, उसका आंसर जो है दैट बिकम्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे। क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई, ये सारे आपके क्वेश्चंस को जो रीअरेंजमेंट करोगे दैट बिकम्स योर टॉपिक। दूसरा आपका आता है दैट इज जीएस वाला एसे। इसमें तो आप जनरली पेस्टल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर फ्लो। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एसे में 101 मार्क्स थे, एंड प्राइमरीली बिकॉज, और दिस टाइम अराउंड वाज 129। पहले अटेम्प्ट में इतने कम क्यों आए? आई थिंक बिकॉज आई मिस इंटरप्रेटेड वन टॉपिक। सो द टॉपिक वाज हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, एंड आई रोट एवरीथिंग। द टॉपिक वाज अबाउट मदरहुड एंड आई रोट एवरीथिंग एक्सेप्ट मदरहुड। तो उन्होंने मेरे नंबर काफी काट लिए होंगे उसमें। तो इंटरप्रिटेशन सही करिए, इसके काफी अच्छा तरीका है। लास्ट 5-6 साल के जो भी एसेज आए हैं, यू यूज चैट जीपीटी एंड ट्राई टू नो अबाउट देम, ठीक है, क्योंकि रिपीट होता है ऐसे के टॉपिक्स भी। सेकेंडली, मैं क्या करता था, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो आफ्टर रीडिंग द essay in English, I used to read the Hindi translation as well, and that helped me to double check whether my interpretation was correct or not, ठीक है। So you could always do that. Last is a value addition and content. अब इसमें आप कुछ यूनिक सोर्सेज यूज कर सकते हैं। डोंट ट्राई एंड रिपीट द सेम स्टैंडर्ड थिंग्स। जैसे हर साल लोग बुद्धा जी, गांधी जी, इन सब पे ऐसे का अपने एनेक्डोट वगैरह लिखाते हैं। प्लीज ट्राई एंड अवॉइड दैट, क्योंकि एग्जामिनर अगर 100 बार पढ़ेगा तो 101 बार जब वो सेम चीज पढ़ेगा तो ही विल बी फेड अप कि भाई क्या लिख के आ रहे हो, कुछ नया लिख के आओ। सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम यूनिक वैल्यू एडिशंस इन दैट। अब वो कहाँ से लेके आओगे आप? एक तो टेड टॉक्स बहुत अच्छी होती है इनमें, तो यू कैन ऑलवेज सी टेड टॉक्स। पोएम्स आप देख सकते हो। मैं तो मूवीज काफी देखता था, तो मूवीज से मुझे काफी चीजें मिल गई, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कुड बी रेफरिंग टू फॉर जनरेटिंग यूनिक कंटेंट। सो दिस वाज अ बेसिक जिस्ट कि आपको जनरल स्टडीज में कैसे अप्रोच करना है। आई थिंक 3 थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। सबसे पहला इज योर कंटेंट, ठीक है। कंटेंट इज द की। आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो मार्क्स जनरली आपको ठीक ही मिलेंगे, बिलो एवरेज तो नहीं मिलेगा। तो कंटेंट इज वन थिंग। सेकेंड इज योर प्रेजेंटेशन। सो आई हैव सीन मेनी पीपल हु ओवर एम्फोसाइज कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत यूनिक तरीके निकाल लेते हैं। तो मेरा भी एक दोस्त था, इस बार उसने बोला कि मैं तो भाई इतने अच्छे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आया हूँ, ये करके आया हूँ। मैंने बोला मैं सिंपल लिख के आया हूँ। फिर उसको लगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था बिकॉज टॉपर्स वर सेइंग दैट। फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हो गया मेंस में। देन आई सेड कि भाई कैसे तुमने अपने डायग्राम बनाए? तो उसका काफी यूनिक तरीका था। अगर ये मान लो एक सेक्शन है, ये उसका बॉक्स है, तो वो इतना बड़ा कुछ बना लेता था और इतना छोटा कंटेंट लिख के आता था। तो दैट इज समथिंग दैट मेनी पीपल आर डूइंग दीस डेज, कि अपना कंटेंट की शॉर्टेज को छुपाने के लिए दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ इनोवेटिव डायग्राम्स। तो आई सजेस्ट ये सब मत करो आप, क्योंकि एग्जामिनर आपसे समझदार है। अगर आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो फिर फाइनली सिलेक्शन नहीं होना है। तो मैं तो अपना पॉइंट वाइज लिखता था जनरली, एंड टू रिमूव द जो मंडेन या मोनोटोनस नेचर था, कभी कभी मैं फ्लो चार्ट्स वगैरह बना देता था। बट माई प्राइमरी पर्पस वॉज कि भाई मुझे अपना कंटेंट की रखना है। सेकेंड आपका प्रेजेंटेशन है। थर्ड आपका ये है कि ट्राई एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, राइट, एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। जितने टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ यू लीव 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस, या आपका 1-2 क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, देन यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है, बिकॉज द एग्जामिनेशन वेरी कंपिटिटिव।
दो 3 मार्क्स से आपके 20 25 30 रैंक तक ऊपर नीचे हो जाती है. सो practice as many times as possible. This time around in my first attempt I gave around 14 to 15 tests in total because I did not have time as I was preparing with my graduation. This time around I gave more than 75 mains का test, जिसमें करीब around 40 टेस्ट वर FLTs and 35 to 36 टेस्ट वर HLTs. तो मेरे ख्याल से जो मेरा स्कोर का इंप्रूवमेंट हुआ है उसका बेसिक जिस्ट ही है प्रैक्टिस. एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो रहे हैं. जब उस स्टेज पे आप आ जाओगे प्रिपरेशन की, देन थिंक कि भाई अब मेरा मेंस का प्रिपरेशन खत्म हो गया है. सो उस स्टेज तक आपको पहुंचना है कि आपको रिपीट टेलीकास्ट लगने लगे. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड.